pressure so previously we have discussed that when a pressure is applied at any point on an enclosed liquid, that pressure is equally transmitted in all directions. And also we have studied that as we go deeper and deeper inside the liquid, the pressure goes on increasing. So how will we prove this point that pressure goes on increasing as we go deeper and deeper? This is second, what we have to prove is how do we measure the pressure exerted by a liquid, considering the height of the liquid. Say this is the dam and the river is full in the rainy season. So the height of the water from the base of the dam is moved. So greater the height of the water from the base of the dam, the greater will be the pressure at the lower point of the dam. Because the height, the inside height goes on increasing. So let us prove what will be the pressure P exerted by the liquid at the base of the dam or at any height. Say this is height H, this is height H1, this is height H2, this is height H3 और this is height H4. तो ये किसी भी हाइट पे प्रेशर कितना होगा वो हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिससे कि हम निकाल सकते हैं. तो फॉर्मूला में अभी तक आप लोग प्रेशर में क्या पढ़ा था? जनरल बेसिक इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इज इट? So applying this basic equation, we will derive how to measure the pressure applied at a point inside the liquid. Say this is the point, this is the point, this is the point, this is the point, and this is the point. So all these points are inside the liquid. So what will be the pressure at this point 1? What will be pressure at point 2, point 3, point 4, like that. ये हमको आज निकालना. Consider a liquid of density rho. Consider a liquid of density rho. Rho is the density of liquid. ये रो ग्रीक लेटर है, P की तरह ही लिखते हैं लेकिन थोड़ा सा इसका इस तरह से हम ये करते हैं. रो रो RHO. But here H is silent, we pronounce it as rho. So rho is the density of the liquid. H is the height of the liquid. And A is the area of base of the container. And we will draw a figure. Say this is a container of area A, the area of the bottom, and this is the liquid contained by the container, that is your height H, and the density of this liquid is rho. Completed? Yes, sir. Now, to use the formula, pressure is equal to force upon area. Okay? Here we have to find the force. How the liquid applies force? So we have to find the where F is force applied by liquid.
and A is the area of the container. Now what is force? From the Newton's second law, force is defined as mass into acceleration. Newton's second law. So here force is equal to mass into acceleration A. But here we will not use A. Why? Because here the liquid is not moving. Liquid is not moving. Liquid is stationary. So acceleration is 0. So the force will become, if acceleration will be 0, then force will become 0. But this is not the case. Here we will use the acceleration due to gravity, that is G. G is called as acceleration, but it is due to the gravity of the earth. So we will replace A with G. So the force become mass into acceleration due to gravity. Now what is the mass of the liquid, this much of liquid? Again there is a new problem. What is the mass of this much of liquid? So how will you calculate mass? You know that density D is equal to mass per unit volume. ये फॉर्मूला आप जानते हैं. Density is nothing but mass per unit volume. So here density we have taken as rho. So mass will be equal to volume into rho. So here mass is equal to volume multiplied by density of the liquid multiplied by the G. Now how will you find the volume of the liquid? Area is given. When we multiply area with this height of liquid H, we will get the volume of the liquid. कि कितना वॉल्यूम है वाटर? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. और अगर सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ रहे या ब्रेथ इनटू हाइट रहे या लेंथ इनटू हाइट रहे, अगर दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको? एरिया मिलता है. ठीक है, तो एरिया हम ऑलरेडी ले लिए, यानी कि दो डायमेंशन ऑलरेडी ले लिए. तो तीसरा डायमेंशन हमारा क्या बचा? हाइट. सो एरिया इनटू हाइट h इज नथिंग बट योर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. सो हियर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज एरिया इनटू हाइट h and density as it is, acceleration due to gravity as it is. So it becomes, the force is equal to rho A at G. This becomes your force applied by this much of liquid. So when we just rearrange this term, rho A at, this is your force, this is your mass, and this is G. So mass into G, what is? Mass into G, force. So this becomes your force. Now put the value of this force in the equation. P is equal to force upon area. Then what will be the pressure? Anybody? फोर्स के साथ हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2 का हम पुट करेंगे रो ए एच G multiplied by, divided by K. So A get cancelled. The pressure will become equal to rho H G. Yes. This is the measurement of liquid pressure at any point inside the liquid. लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर निकाल सकते हैं if we know the density of the liquid content, the height of the liquid, and G is the constant, that is acceleration due to gravity. So from this again we can analyze that pressure of the liquid at any point depends on density of the liquid. Different liquid have different density. Water has different density, mustard oil has different density, refined oil has different density, castor oil has different density, lubricating oil has different density. तो यदि हम एक ही हाइट पे सपोज करिए कि 50 सेंटीमीटर हाइट पे हाइट का हमने वाटर लिया और 50 सेंटीमीटर हाइट पे हमने एक केरोसिन ऑयल लिया, तो क्या दोनों का डेंसिटी सेम होगा?
दोनों का डेंसिटी डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर सेम हाइट पे, हाइट दोनों का हमने से 50 सेंटीमीटर लिया है, तो सेम हाइट पे हमारा प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? इट इज ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, अब दूसरा केस ये है कि डेंसिटी सेम है, यानी कि एक कंटेनर में वाटर है, सपोज के लिए 2 कंटेनर में वाटर है, इसमें भी वाटर है तो इसका डेंसिटी रो हो गया, और इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, तो दोनों का क्या डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस। इसका हाइट h1 और इसका हाइट h2। तो क्या दोनों का प्रेशर अलग अलग होगा या सेम होगा? अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये और ये कांस्टेंट हो गया, है ना। क्या वेरी कर रहा है? हाइट वेरी कर रहा है। तो हाइट के वेरी होने के कारण हमारा प्रेशर भी अलग अलग, हाइट के लिक्विड का अलग अलग होगा। तो ये कंसेप्ट हमको एनालाइज करना है, और ये फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का। प्रेशर, अनदर फॉर्मूला ऑफ प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, P is equal to rho at G। ये हमने हाइट, h हाइट का हमने लिक्विड लिया, ये रो डेंसिटी का लिक्विड लिया h हाइट पे, और जिसका एरिया A। इसके इस फिगर के आधार पर ये बना है। फिगर रहेगा तो आप लोग को समझने में आसानी है कि A कहां से आया, रो कहां से आया, और h क्या है। The pressure exerted by a liquid, pressure exerted by a liquid at a point inside the liquid, underline the liquid, is directly proportional to, directly proportional to dash देंगे, number 1, the height of the liquid, the height of the liquid from the free surface, height of the liquid from the free surface। फ्री सरफेस का मतलब समझ रहे हैं? फ्री सरफेस किसका? अगर उस बकेट में हम पानी भर दें तो पानी का जो सरफेस होगा दैट इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस। द हाइट ऑफ द पॉइंट, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हाइट सेकंड क्वेश्चन जिसके ऊपर डिपेंड करता है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, the density of the liquid, ये कंक्लूजन हमने कभी हमने क्या डिराइव किया, रो ए एच जी, ए गेट कैंसिल हो गया था तो ये हट गया था, रो एच जी। तो फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ द पॉइंट कहा गया, इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी हम हाइट ऑफ द लिक्विड कर रहे थे, अभी हाइट ऑफ द पॉइंट कर रहे हैं। अब देखिए पॉइंट वो जगह है जहां पे हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है। पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर हमको निकाल रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि हम यहां पर प्रेशर निकाल रहे हैं और यहां तक लिक्विड है, लिक्विड यहां तक है, पूरा ये कंटेनर में भरा हुआ है, और पॉइंट ए ये हो गया, यहां पे भी हमको प्रेशर निकालना है, और पॉइंट बी यहां पे भी प्रेशर निकालना है। तो जिस पॉइंट पे हम प्रेशर निकाल रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का हाइट कितना है वही एच हम लेंगे, ठीक है। अगर हम ए के ऊपर निकाल रहे हैं तो लिक्विड का हाइट कितना लेंगे, इतना ही लेंगे। तो इसको हम अगर कर दें, ये हमारा हो गया H1 और यहां से यहां तक हो गया हमारा H2, और टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड इज H। टोटल हाइट कितना है, लेकिन वहां पर टोटल हाइट पे नहीं निकालना है, एक पॉइंट बी पे निकालना है जिसका हाइट फ्री सरफेस, ये इसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो ये फ्री सरफेस से कितना नीचे है पॉइंट,
वो हाइट को लेंगे, अगर B को लेंगे तो हाइट h2 लेंगे, अगर A को लेंगे तो हाइट h1 लेंगे। उसके बाद सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर भी। अब चूंकि ये एक ही लिक्विड है तो दोनों पॉइंट पे डेंसिटी हमारा सेम रहेगा। तो एक पे जब हम निकालेंगे से प्रेशर एट B निकालना है तो हम लिखेंगे PV। PV का मतलब प्रेशर एट पॉइंट D। PV इज इक्वल टू रो H2 इंटू एंड PA के ऊपर निकालना होगा तो हम लिखेंगे प्रेशर एट A दैट इज PA इज इक्वल टू रो H1 G। ठीक है, अब दोनों में रो सेम है, क्यों? क्योंकि लिक्विड हमारा सेम है, इसीलिए डेंसिटी उसका सेम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम निकालते हैं। उसको समझना होगा कि कहां तक, कहां पे हमको प्रेशर, किस पॉइंट पे हमको प्रेशर निकालना है। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उस पॉइंट तक फ्री सरफेस से कितना हाइट है वो हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसका प्रेशर निकाल पाएंगे। Now next is your upthrust or buoyancy. Upthrust or buoyancy. What is upthrust? You know the term thrust? What is thrust? Yes, the force acting perpendicular to the surface is called thrust, and thrust is applied by what? कौन लगाता है? Liquid or gas. ये normal force. So this is thrust. Now what is upthrust? Upthrust. Say this is a container in which there is liquid. And I had taken one cube of wood. wood का एक क्यूब हम लिए हैं। ये क्यूब को हम जब इस सरफेस के ऊपर में हम जब रखेंगे इस तरह से, तो क्या होगा? ये डूबेगा कि तैरेगा? क्यों तैरेगा? क्यों तैरेगा? इसका तो वेट है कि नहीं है? लकड़ी का वेट है ना, मास है ना। तो जब भी यहाँ पे इतना हाइट पे है तो यहाँ पे G एक्ट होगा, तो फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू M इंटू G। तो ये फोर्स M इंटू G ये लगा रहा है, लेकिन ये फिर भी वो तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? यही रीजन हमको निकालना है। दिस यस ओके, this is the correct answer, but this will discuss in the later part of this section. Okay, sit down. Good answer, but here I am not going to the density and considering the balanced or unbalanced force. जैसे ही हम इस लिक्विड को इसके ऊपर लगाएंगे तो इसके मास जितना भी है 50 ग्राम 200 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी है, उस मास के कारण हमारा फोर्स लगेगा। ठीक है, दैट फोर्स इज से F1। तो F1 कहां एक्ट होगा? नीचे के ऊपर, नीचे ऑलवेज हमारा वो फोर्स हमारा नीचे की ओर एक्ट होगा। ये हमारा F1 हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें इसके मास के कारण ये फोर्स नीचे की ओर लगा रहा है। उसके साथ ही साथ ये जो लिक्विड है ये इसके बेस पे फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। But since the thrust is acting upward, it is called as upthrust. It is called as upthrust. The upthrust is the normal force acting upward or a perpendicular force acting upward. जब भी perpendicular force, normal force या thrust ऊपर की ओर एक्ट होगा उसको हम बोलते हैं upthrust. Now, the force is say this upthrust is F2. दो फोर्स हो गए इसके ऊपर में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2।
एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अब कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग देखिए, इफ F1 is greater than F2, what will happen? If the downward force is greater than the upward force, it will sink. It will sink. And if F1 is less than F2, it will fall. So this is due to the, by considering the balance or unbalanced. And one more case is there. If F1 is equal to F2, what will happen? If F1 is equal, दोनों फोर्स बराबर है, तब क्या होगा? फ्लोटिंग ही रहेगा। तो इस फ्लोटिंग में और इस फ्लोटिंग में क्या अंतर है? बराबर लगा फ्लोटिंग कर रहा है। ये कम लगा रहा है, F1 इज लेस, F2 इज मोर, तो उस केस में ये फ्लोटिंग तो होगा, बट सम पार्ट ऑफ दिस क्यूब विल बी सिंक इनसाइड द वाटर। इसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ रहेगा, फ्लोट करेगा, लेकिन कुछ पार्ट हो सकता है 50%, हो सकता है 25%, हो सकता है 75% पार्ट इसका पानी में डूबा रहेगा, लेकिन वो सरफेस के ऊपर में तैरेगा। तो इसका सपोज कीजिए, इसी को हम दिखा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इतना ये डूबा हुआ है, लेकिन ये फ्लोट कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ दिस। एंड इफ F1 is equal to F2, that object will almost remain on the surface of the, वो सरफेस लिक्विड के सरफेस पे ही रहेगा, बहुत ही हल्का सा इसका पार्ट इस पे डूबा रहेगा, लेकिन इतना ये नहीं रहेगा। ये तब रहेगा जब F1 is less than F2, depending upon the value of the F1 and F2. Now this upthrust, that is the thrust acting upward, this phenomena is called buoyancy. Buoyancy, and this upthrust is also called as buoyant force. Buoyant force. अपथ्रस्ट को हम buoyant force भी बोलते हैं। और जब इस अपथ्रस्ट के कारण यदि ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है या सिंक हो रहा है, उस फिनोमिना को, उस प्रक्रिया को हम बुआयंसी बोलते हैं। इतनी ज्यादा डेंसिटी आई कहां से? सॉल्ट के कारण। उस वाटर में सॉल्ट डिजोल्व है, जितना ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व उसका डेंसिटी वैसे वैसे कम होने लगता है। प्योर वाटर का डेंसिटी हमारा सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या समझा? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट को ही हम और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बुoyant फोर्स। बुoyant फोर्स। और इस फिनोमिना जिसके कारण प्रत्येक वस्तु किसी भी तरल पदार्थ के सरफेस पे तैरता है या डूबता है, डूबते वक्त भी बुoyant फोर्स लग रहा है, तैरते वक्त भी लग रहा है। तो जो फोर्स लगता है लिक्विड के कारण किसी वस्तु पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? बुoyant फोर्स बोलते हैं। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज बुoyancy, अपथ्रस्ट और buoyant फोर्स। Upward force, the upward force exerted by a liquid on a body which is immersed in the liquid, which is immersed in the liquid is known as upthrust or buoyant force. You draw a small tank containing a liquid
and you say this is a cube and on the surface of the bottom of the cube the force is acting, so this is called as upthrust. The upthrust depends on the upthrust or buoyant force depends on the volume of the body, immersed in liquid. Second, the density of the liquid. तो अपथ्रस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड. सपोज करिए एक कंटेनर में हमने लिक्विड रखा और इसमें एक ऑब्जेक्ट को रखा था, इसका 50% ये डूब गया. 50% ये इस बॉडी का 50% ये पानी के अंदर हो गया. तो जो इसके ऊपर में जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा. और दूसरे में से इसका 25% डूबा हुआ है या 10% डूबा हुआ है, कितना ही डूबा है, इसमें हमारा पॉइंट फोर्स कम लगेगा. कितना वो डूबा हुआ है, अगर ज्यादा डूबा हुआ है तो फोर्स ज्यादा लगेगा और कम डूबा हुआ है तो फोर्स उसका कम लगेगा. So this is all for today. Next, tomorrow we will discuss about the buoyancy and the law of buoyancy, that is the Archimedes principle.